Very good afternoon, everyone. Welcome to the day second of telehealth webinar powered by BSWAST. I would like to introduce you all. First of all, our chief guest, Mr. Uttam Prakash Agarwal. We have Mr. Prakash Agarwal. He is the founder of UPSC Academy and a former president of ICAI. He has been a great support to us in his ideas and experience and helped us a lot to move forward. As you are all aware that we have Mr. G.N. Gupta, the founder and chairman of BSWAST Healthcare Limited and president of Mission Rural India. We also have Dr. Ashutosh Sharma, founder and director of Samaritans Group of School. He has provided jobs to thousands of underprivileged, knowledgeable, skilled people and a great support to empowering widows by providing them jobs in various sectors as per their expertise. We also have our Mr. Virendra Kumarji. He is the secretary of Vanvasi Raksha Parivar. He has been working tirelessly for over 30 years in the development of Vanvasi section by preaching and teaching them new ways of life, developing their skill and knowledge to encourage them to know the new ways of living in new world. As of now, we also have other speakers as well. Those who have been working and knows BSWAST for quite a long time. They have been with us and giving us all support, to make BSWAST to reach goals, to reach high heights. So as of now, we to start with the webinar, I would request Mr. Uttam Prakash Agarwal to spread some knowledge, to give us some kind of knowledge and ideas, and also share his views on telemedicine and BSWAST. Thank you. Thank you very much. It is an honor and proud privilege for me to address a seminar or webinar, and that too particular a very good topic is health is a priority. Even though I'm a chartered accountant, but I as a human being, I need that my health should be good. So far, we all as a chartered accountant have thought for the good health of the financial sectors, the corporate world, and directly indirectly to the whole economy and country. But when health is not good, I don't think that whatever exercise we as a chartered accountant we do, even the people have crores of rupees, but health is not good, no use. So it is a very apt subject and the activity taken up by Gupta ji under his chairmanship Rural Mission. And I was so happy when I met Gupta ji just last week, and when I understood his vision for serving the people in the rural area, and that too at very minimum cost with the honorable good doctors on the panel. I think Dr. Prerna Arora, Pallavi ji, Krishna ji, a lot of people, a lot of good people they are on board, and they have a lot of good doctor teams where they will be giving a medicine, providing the medicine also 24/7 health and all. So and this particular corona, which we all are facing for last 1.5 years, everybody, even the minister, chief minister has said that we have shortage of the doctor, we will not be able to serve the society. But SWAS is trying, in spite of the shortage, sitting at home 24/7, get the doctor at very minimum cost. I think Gupta ji, kudos to you and your whole team, and that lady company secretary Prerna Goyal also for taking excellent initiative. And I said, I am not a doctor, but Virendra ji is also there, and they are also taking care of Vanvasi Raksha Parivar. It's a very good organization where they are working. So Gupta ji and team, I am thankful to you for inviting me and allowing me to listen the experts and making my health as well as the people to whom I interact through the SWAS, how we can all be the healthy people and take and fight with this particular situation and also the future. So thank you very much, Gupta ji, once again for inviting me. Thank you so much for sharing your views and ideas. I would like to call upon Dr. Prerna to share her thoughts. I would like to tell everyone that Dr. Prerna is one of our doctors in the panel of BSWAST. She has been doing a tremendous job. She has been into online consultation with the doctors, with the patients. She has also worked into the camps for mountain and people in the mountains. She has been into Manali.
She has been serving those people. She has been tirelessly serving those people. Dr. Prerna, kindly share your thoughts upon BSWAST and telemedicine. Thank you. Yes, hi Nikunj. Thank you so much. Good afternoon to all of you. Thank you for having me here. I feel so privileged. So yes, Nikunj is very right that I always had a thought in my mind. Lifetime we are all working for a cause. There has to be a cause of working, and my profession is all about that. So the thing that always concerned me was the people who we cannot approach. Of course, we would want to use our 100% efficiency, and that is what doctors usually do. But then again, the underprivileged ones were always my concern, and I had contacts in mountains. I personally went to people. And I think not only, it wasn't just me finding BSWAST found me at the very right time, because they and me had shared somewhat the same intentions. Yes, I always wanted to reach there. So in the coming times, that is what we plan to do. We plan to take our app there. 10 रुपए का कंसल्टेशन देने में आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी बिग डील. वहां पे लोग बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत में है. और ऑल्सो सबसे बड़ी हमारा जो पॉइंट था, जो प्रॉब्लम थी इंडिया की, कि एक डॉक्टर पे इतना लोड, ना डॉक्टर पहुंच पा रहा है और ना पेशेंट पहुंच पा रहा है. टेली कंसल्टेशन इज दी वन स्टॉप सॉल्यूशन टू इट. एंड आई थैंक द होल टीम कि उन्होंने इतना बड़ा थॉट रखा. आई एम अमेज्ड एट हाउ इजी, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक तरीके से ऐप को तैयार किया गया है. कोई भी आप, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर बंदा उस ऐप को यूज करे पहली बार में. हम एक कैंप कर सकते हैं जहां पे हम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे, किसी एक केमिस्ट को या फिर एक कोई नोन जो हमारे हैं, और उनको ये चीज समझाएंगे कि ऐप कैसे यूज करनी है. एंड देन दे कैन टेक अप, bring people around, and it is so approachable to everyone there. उसके बाद वो लोग यूज करके डॉक्टर्स को पास फील कर सकते हैं. एटलीस्ट दे नो कि उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई होगा. एंड यस, 10 रुपीज इज समथिंग दैट इज अ मिनिमल कॉस्ट यू कैन फाइंड इन इंडिया राइट नाउ. तो कहीं ना कहीं इंटेंशन सेम था. और इन अ सिचुएशन लाइक कोविड-19 जैसे हुआ, कोरोना वायरस का, द पैंडेमिक वी weren't ready for. I am amazed at how teleconsultation could have solved all the problems. It to a very great extent has. अभी तक टेलीकंसल्टेशन है, बट एक इतनी मिनिमल कॉस्ट पे और इतनी इजी अप्रोचेबल कुछ नहीं था. सो आई थैंक निकुंज एंड द होल टीम, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर गुप्ता फॉर ब्रिंगिंग अप दिस थॉट, क्योंकि ये ऐप बहुत इजी है. किसी के भी, कोई भी, हम रिकॉर्ड्स रख सकते हैं पेशेंट्स के, पेशेंट से 1-on-1 बात कर पा रहे हैं हम वीडियो कॉल पे. पेशेंट हमारे को क्लोज फील कर रहा है. एंड द अदर वे राउंड, थोड़ा एक पेशेंट को जो आज के टाइम पे फील होता है कि डॉक्टर अप्रोचेबल ही नहीं है, जो कि बिल्कुल सच है, क्योंकि आज वो खुद इतने ऑक्यूपाइड है कोविड-19 के. वो ही मेन वॉरियर्स हैं. वो हर एक, उनको हॉस्पिटल से बाहर निकलने का भी टाइम नहीं मिलता है. तो दिस टेलीकंसल्टेशन वो हॉस्पिटल में बैठ के या घर पे ब्रेक लेके भी कर सकते हैं. सो नॉट ओनली टू पीपल जिनको हम अप्रोच करना चाह रहे हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जिनको जरूरत है, बट टू माई फेलो डॉक्टर्स ऑल्सो. आई थिंक इट इज अ वेरी गुड आइडिया. आप अपना टाइम निकाल सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं. आगे आने वाले टाइम्स में, जैसे कोरोना की मेन प्रॉब्लम्स थी हमारी, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें मेंटेन करनी थी, हम ओवर क्राउडिंग नहीं कर सकते थे. तो BSWAST इज द सॉल्यूशन टू इट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. वन स्टॉप में आप एक अपॉइंटमेंट लेते हो, सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही नहीं, ये एज अ डॉक्टर ऑल्सो ऑन द अदर एंड मैं समझती हूँ कि बहुत ईजी कर दिया है. क्योंकि मुझे एकदम से नहीं पता चल रहा है कि मेरी अभी अपॉइंटमेंट है. आई एम बीइंग इंटिमिडेटेड अ लिटिल अर्लियर कि हाँ आपकी अपॉइंटमेंट है. सो आई एम प्रिपेयर्ड कि हाँ मेरे को एक पेशेंट देखना है. So yeah, we are working on marketing. I believe we are streamlining all the projects, and however sir has planned it out, and we'll be reaching people. हमारी बहुत सारी problems हम sort कर सकते हैं. आने वाले टाइम्स में भी, अब हमें नहीं पता कोरोना वायरस का इंडिया में क्या फ्यूचर है. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट एट ऑल. वी आर नॉट लाइक एनी अदर कंट्री इन दी होल वर्ल्ड. वी आर ऑलमोस्ट द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड. हमारे जो पॉलिसीज होंगी वो बहुत अलग होंगी दूसरी कंट्रीज से, अगर हमारे को कोविड-19 को टैकल करना है तो. एंड आई बिलीव टेली कंसल्टेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड अब टेली कंसल्टेशन, ऑफ कोर्स पहले इस चीज को इतना बेनिफिशियल नहीं माना जाता था, बिकॉज हु डजंट वांट टू विजिट अ डॉक्टर. बट आज वो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, वो करना चाह भी नहीं रहे हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए. तो बिलीवेबली हमने उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं.
उनको हम अप्रोचेबल कर सकते हैं, हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं उनके लिए. एंड ऑल्सो दिस इज द टाइम, मतलब अगर किसी को, वी हैव टू एक्सपैंड द एक्सेस टू द एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज. अगर हम चाहते हैं कि अभी you cannot tell the government to increase the seats for doctors because it's not easy, but एक डॉक्टर अगर ज्यादा पेशेंट्स को अप्रोच कर देगा उसके पॉसिबल लेवल से, अब ओपीडी में आप ज्यादा पेशेंट्स नहीं देख सकते हो, बट आप ऑनलाइन देख सकते हो. इन अ स्पैन ऑफ 3 hours अगर आप 10 मिनट्स मिलोगे, देयर यू कम अक्रॉस अ गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. इमरजेंसी सिचुएशंस में इस ऐप का बहुत फायदा है. आई लाइक दैट पार्ट कि हम इमरजेंसी सिचुएशंस में, आप एटलीस्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, हम एज अ डॉक्टर समझते हैं कि अगर मुझे पता है कि सामने कोई इमरजेंसी में पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे पता है मुझे टैकल करना है, बट हम अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के टाइम पे कहीं ना कहीं एकदम वो हो जाते हैं, स्टम्बल हो जाते हैं कि क्या करें एज अ डॉक्टर. तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल पर्सन जो एक नॉन मेडिको है, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि उस सिचुएशन में क्या करें. तो बी स्वस्थ में उस चीज का भी ऑप्शन दिया है जहां पे उसको डॉक्टर के कांटेक्ट में आए बिना भी एक इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसको वो अप्रोच कर सकते हैं और वो इमरजेंसी को सॉल्व कर सकते हैं, एम्बुलेंसेस कनेक्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक वेरी गुड थॉट बिहाइंड दिस. एंड यस, वी कैन ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू इंक्रीज. अब इसका जो बेनिफिट्स हैं वो तो एनॉर्मस है. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. वी हैव डॉक्टर पल्लवी एंड डॉक्टर श्रीता टॉकिंग अबाउट द सेम. बट यस, जो एक हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट होता है कि हाँ पेशेंट को डॉक्टर से मिल के अच्छा लगता है, बट आजकल जब से कोविड-19 आया, आई थिंक 2 years एवरीथिंग हैज शिफ्टेड ऑनलाइन. जो रिलेटिव्स हैं वो भी ऑनलाइन बात करके रिजॉल्व. अब तो लोगों को आदत हो चुकी है वीडियो कॉल्स पे, यू कम अक्रॉस रिलेटिव्स, द डिस्टेंस हैज कम डाउन सो सून. तो आई थिंक पीपल हैव बिकम मोर कंफर्टेबल. अब उन्हें डॉक्टर को ऐसे देख के भी दे फील कि हाँ उनके पास कोई है. बट हाँ, टू इंक्रीज द फिजिकल कॉन्टैक्ट, आई लाइक द आइडिया कि we will be conducting camps and then we'll be educating people, because to start any project we know it all ki the first step is educating the people. We need to educate people, and that is the sole thing we'll be working on henceforth. I think with the marketing and everything, we'll be going on educating the people. That is what we streamline our intentions to. And yes, we can target a particular group of people. We can go to colleges and educate them, क्योंकि इंडिया जितना ज्यादा मेडिकल एजुकेशन में लैक करता है, आई डोंट थिंक, आई फील, आई एक्चुअली एम अमेज्ड. ये देख के मुझे दुख भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं है उनके बारे में. तो उनको उनके बारे में अगर जानना है और कोई प्लेटफॉर्म ये चीज इजीली कर सकता है 10 रुपए में बैठ के, वो इज दी, I think, the thing that we need in these corona times. So yes, I am grateful to be working with you. And I believe telecommunication is going to be, telemedicine is going to be the way to tackle any pandemic, be it today, be it in the future, but I hope not again. Thank you so much. Thank you so much for having me on the board. I'm glad to be working here. Let's wish for the best. Yeah. Thank you. Thank you so much, Dr. Prerna. It was wonderful thoughts of yours to share with us, and we look forward to work with you as well in the coming future, and hope to see these touching heights with you as well. Yeah, thank you. Dr. Neha Yadav with us. I would like to tell about Dr. Neha Yadav. She is an MBBS aesthetic cosmetology from Germany. Apart from serving in Medanta, Gurgaon, she is also one of the doctors chosen under Pradhan Mantri online doctor consultation for COVID relief since 2019, and has been continuously giving her services. I would like to ask Dr. Neha Yadav to share her thoughts on telemedicine and online doctor consultation, and what she sees as a future for this consultation. Dr. Neha Yadav? Yeah, hi. Good afternoon, everybody. Thank you so much, Nikunj, for having me here. And सबको बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया आज यहाँ आने के लिए और बात करने के लिए. थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो मैं वीडियो नहीं इस समय ऑन कर पाऊंगी, बट आई जस्ट होप कि जस्ट एक वर्बल कॉन्वर्सेशन, आई थिंक दैट वुड बी इनफ. जहां तक यस, सो मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ. आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन. मैं बोर्ड सर्टिफाइड, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ. एंड मैं फील्ड में ऑलमोस्ट सिंस लास्ट 8 years से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ.
बहुत अनफॉर्चुनेट था जो भी लास्ट ईयर 2019 में हमको ग्लोबली देखने को मिला, और उससे हम सभी जूझ रहे हैं आज भी। एंड उसने जिस तरह का इतना विकराल और इस तरह का भयावह रूप जिस तरह का धारण किया है कोविड-19 ने, तो लास्ट ईयर जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था डॉक्टर्स से और बड़े इंस्टीट्यूशन से कि हम डॉक्टर्स की टीम बनाएं, और खुद ही डॉक्टर्स की टीम बनाकर वो डॉक्टर्स के नाम आगे आगे पहुंचाए जाएं, और फिर इस तरीके से हम पेशेंट से अगर जुड़ें, तो हम पेशेंट्स को ऐसे समय में जब लॉकडाउन लगा था और विश्व में सभी के लिए ये पहली बार था जब लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया गया था, और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो लोग जिनको सिर्फ कोविड ही नहीं, उसके अलावा भी शरीर के अन्य अंगों की और सिस्टमिक जो जिस तरह की बीमारियां उनको थी, चाहे वो अक्यूट हो, क्रॉनिक हो, कई सालों से चली आ रही हो। सो ऐसे समय में ऐसे लोगों को ना कि सिर्फ कोविड रिलेटेड हेल्प पहुंचाना, बल्कि बाकी की बीमारियों से संबंधित हेल्प्स पहुंचाना और फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनना किसी भी साथ, क्योंकि ऐसे समय में जैसा हम जानते हैं कि बहुत इजी नहीं था, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई थी, एक समय में 200-200, 250-250 पेशेंट, जहां पर हमारे पास ओपीडी में 100 पेशेंट आते थे, वहां 250-250 पेशेंट्स की लाइन लगी हुई थी, जिसकी वजह से फिर वही परेशानी थी कि जो दूरी बनाना था दो लोगों के बीच में, वो किसी भी तरीके से नियमितता नहीं आ पा रही थी उसमें। तो हर तरीके से वो एक विशियस साइकिल बन गई थी, किसी भी तरीके से इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। थैंकफुली उस समय मेदांता से मैं जिस ग्रुप के साथ मैं जुड़ी, वो ग्रुप बनाया मेदांता ने, वो हमारे अपने डॉक्टर्स थे, और उसमें करीब हमने सबसे पहले मार्च 28 आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, मार्च 28 जब हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया 2020 में, तो हम 25 डॉक्टर्स थे, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट एंड अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स जुड़े, और हमने लगभग अगस्त 2020 तक समवेयर अराउंड 22,000 पेशेंट्स को ऑनलाइन फ्री सेवा प्रोवाइड की थी, जिसमें हमारे साथ कई तरह के एनजीओज और कई तरह के इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये सेवाएं उपलब्ध कराई। जहां पे जैसे बीस्वस्थ काम कर रहा है, उस समय वो एनजीओज और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो बने थे, उन लोगों ने, ऑर्गेनाइजर्स ने उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था कि वो पेशेंट्स तक हम लोगों के नंबर्स पहुंचाते थे। हालांकि हमारे नंबर्स न्यूज़पेपर से लेकर ऑनलाइन भी हर जगह मौजूद थे, और काफी एम्पलीफाई भी हुए थे, लोगों तक पहुंचे थे ये 25 डॉक्टर्स के नाम और नंबर्स। एंड इस तरीके से हम 22,000 पेशेंट्स को ऑल इन ऑल फ्री सेवा दे पाए, रिगार्डलेस कि वो किस बीमारी से थे या उनको किस तरह का क्रॉनिक बीमारी था। एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनने का हमें ये फायदा मिला कि हम उस समय पेशेंट को ये बता पा रहे थे, क्योंकि हमारे लिए भी ये बहुत नया था। हमने इससे पहले टेली कंसल्टेशंस किए थे, लेकिन सिर्फ अपनी फील्ड में किए थे। ये पहली बार हम टेली कंसल्टेशन कर रहे थे, जहां पर अगर मैं किसी पेशेंट से जुड़ी हूं और उस पेशेंट को नेफ्रोलॉजी या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं उसको आगे उस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास फॉरवर्ड कर सकती थी, जो कि इससे पहले हम लोगों ने नहीं किया था। सो कोविड के साथ साथ हमने ये वाली चीजें की। इसके साथ हम और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, जिनसे मिलकर हमें ये पता चला कि ये इंस्टीट्यूशंस या ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये इस तरह के काम कर सकती हैं, और छोटे रीजन्स और वहां पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां या जो भी सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा सकती हैं। पेशेंट्स के लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ही कुछ होता है पेशेंट बिना देरी किए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले सके।
अगर पेशेंट को ये पता है कि उसको इस तरह का मतलब पल्स अगर लो हो रही है या शरीर में दाने दाने उठ रहे हैं, जो कि कोविड रिलेटेड स्किन से संबंधित बहुत बीमारियां लोगों को हुई हैं, जो स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आई हैं लेकिन धीरे धीरे पता चली हैं, तो एटलीस्ट इन सारी चीजों में हम ये कर सकते हैं कि इन पेशेंट्स को हम ये बता सकते हैं कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इससे आगे आपको कैसे कैसे जाना है, आपकी स्टेप्स आगे की क्या हो सकती हैं। सो मेरे ख्याल से जो टेली कंसल्टेशन है वो उसने एक बहुत ही ब्यूटिफाई, मतलब इस तरीके से उसने ब्यूटिफाई कर दिया है इस पूरे हेल्थ रेजिम को कि ना सिर्फ दूर बैठा कोई भी डॉक्टर, इनफैक्ट डॉक्टर्स खुद आगे आकर इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि हम इस एरिया में जुड़ेंगे या हम यहाँ हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नो मैटर द डिस्टेंस, डॉक्टर कहीं भी बैठा है, आप तक किसी भी तरह की सुविधाएं पहुंच सकती हैं। सो पिछले 2 महीने में मेरे अपने पर्सनली जिन लोगों को मैंने फ्री में सेवाएं दी हैं, समवेयर अराउंड 60 से 70 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास अभी भी वो नंबर थे, और सोशल मीडिया की हेल्प से मुझे ऐसे पेशेंट्स को मदद करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगता है जब वो पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट मिल जाता है। जब तक वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया या ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तब तक वो क्या कर सकते थे कि वो अपनी जान को बचा सके। तो ये वाली सारी चीजें बहुत मुमकिन हो पाई हैं इस समय। एंड मेरी अपनी पर्सनली ये जर्नी पिछले मार्च 2020 से आज तक की डेट तक की बहुत खूबसूरत रही है। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ बी स्वस्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि वो इतने बढ़िया एक आइडिया के साथ आए हैं जहां पर एक स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट बन सकते हैं उन पेशेंट्स के साथ जिनके पास आई थिंक ना वो खुद पहुंचते ना वो खुद कोशिश करते, तो एटलीस्ट उन तक पहुंचकर उन्हें बताना कि आपके लिए पहुंचना जरूरी है, कि आपके लिए डॉक्टर्स से संपर्क करना जरूरी है ताकि आपको हम बचा सकें किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन से। सो बेस्ट ऑफ लक बी स्वस्थ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच। your name is gonna be written in beautiful, in colorful words in a capital letter. So I wish you all the very best, to Nikunj as well, and to the entire team. Thank you so much for having me, and you can have my number, contact me in anytime, or whenever the need is required. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Neha. It was wonderful having you with us. And thank you for sharing your thoughts, your experience with us. We have Dr. Pallavi with us. She is also one of our doctor in the panel. And she's also again tirelessly serving the underprivileged one and the poor one. May I call Dr. Pallavi to share her thoughts? I'm so thankful to Nikunj and everybody to have me here. I'm here to talk about how we can take B-Swast to villages or all the areas जहाँ पे ये possible नहीं है for people to come and approach doctors. So basically एक गांव में क्या होता है या कोई भी जगह जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, they go to chemist. The first contact is chemist. So what we can do, we can approach the chemist. We can tell them, हम उनके साथ coordinate कर सकते हैं, उन्हें पूरा ऐप सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि कैसे आप डॉक्टर्स को कांटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही कोई पेशेंट एक केमिस्ट के पास आता है फॉर प्राइमरी नीड्स कि उनको कुछ भी हो रहा है, तो दे कैन डायरेक्टली उस पे अपॉइंटमेंट लेके दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट देम, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट देम टू अस। एंड ऑल्सो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स होते हैं जो पूरे गांव में, पूरे अंडर प्रिविलेज एरिया में जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, दे आर देयर क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वहां पे। सो व्हाट वी कैन डू, वी हैविंग टू वर्क विद देम, वी कैन काउंसिल देम। एक आंगनवाड़ी वर्कर का एक मेजर यूज होता है, मेजर वर्क होता है कि वो बच्चों को मॉनिटर करे, उनके न्यूट्रिशन को मॉनिटर करे। सो व्हाट वी कैन डू कि वो हमें उनसे कनेक्ट कराए। हम एक आंगनबाड़ी वर्कर को पूरे टाइम काउंसिल कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा आता है, उसका ग्रोथ चार्ट बना के, एक बच्चे का ग्रोथ चार्ट बना के वी कैन मॉनिटर बच्चे को क्या हो रहा है। एंड इसे हम बच्चे के आने वाली बीमारी को या बच्चे को कोई न्यूट्रिशन की कमी है, कुछ भी है, वी कैन प्रिवेंट दैट।
not only medicines, we can counsel them, we can tell them, we can talk about nutrition, we can talk about healthy living, we can talk about healthy lifestyle. And जैसे आशा वर्कर्स हैं, बेसिकली वो they connect, they educate women, they give their primary services. तो आशा वर्कर्स से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन हम उन्हें बता सकते हैं, हम फीमेल्स को एजुकेट कर सकते हैं, गांव की या कहीं भी फीमेल्स हैं जो उनसे कांटेक्ट में हैं कि बेटर लिविंग क्या है, घर का न्यूट्रिशन क्या होता है. तो दे आर द वंस हु कुक फूड मोस्टली घर में. तो हम अगर उन्हें एजुकेट करते हैं तो हम एक पूरे फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं कि क्या बेटर न्यूट्रिशन है, क्या खाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है. तो हम ये टेली कंसल्टेशन के थ्रू वी कैन चेंज एवरीथिंग, वी कैन एजुकेट एवरीवन. I'm so sorry, there was some issue. Yeah. So I was telling कि जैसे allopathy doesn't deny the fact कि nutrition, healthy living, everything, because कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी हमारे ओपीडी में आता है, बीट हाइपरटेंशन, शुगर, कुछ भी, सो हम उन्हें पहले काउंसिल करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलिए, आप अपना रूटीन बदलिए, आप अपना न्यूट्रिशन बदलिए. सो या वी कैन वर्क लाइक दिस, वी कैन टेल एवरीवन. और आगे आने वाले कोई भी आउटब्रेक्स होते हैं, कोई भी होते हैं, जैसे आशा वर्कर्स हैं, एवरीबडी वहां जिनसे गांव में जिनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जिनसे रिलेटेड, दे कैन टेल अस कि 10 घर हैं जिसमें ये सिम्टम्स हैं, तो हम किसी आउटब्रेक को पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट देम टू अदर हॉस्पिटल्स, वी कैन रेफर देम टू सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स, and that's how we can decrease the burden on secondary healthcare also. If we can manage them on this platform, on this basis, we can do that easily. So it's going to be very beneficial for them. We can provide a better medical facility to everyone through teleconsultation. And with these, we are planning to do everything. We are planning to cover all the areas which are underprivileged, all the people who can't go to hospitals directly. So yeah, I'm very hopeful that we'll do this together, and thank you so much for having me here. Thank you, Dr. Pallavi. Dr. Pallavi, we also have one question arrive as you're online and you're talking, so I just want to help you with that. Mr. Mukesh Goyal has put in question here: how to protect kids from COVID exposure under the probable threat of third wave. Also, kids have psychological issue due to long stay at home and continued uses of electronic devices for study. So any suggestion that you want to give or anything that you want to speak about this, like how the kids who are staying home can be taken, taken well care of, and because they are being home for a long time. So any suggestion regarding this? Yeah, definitely, because kids are the ones, first of all, उन्हें भी मास्क पहना है. I've seen so many people कि पूरे फैमिली मेंबर्स ने मास्क पहना है और बच्चों ने मास्क नहीं पहना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को भी मास्क पहना है. उसके बाद बेटर लिविंग, घर का एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग शुड बी क्लीन, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर डिस्टेंस. एंड ऑल्सो बिकॉज दे आर स्टेइंग ऑल द टाइम एट होम, एल्डर्स कैन अंडरस्टैंड कि बाहर पैंडेमिक चल रहा है and things are going wrong, so you have to stay inside. But kids, because they're very fragile or they don't understand usually, so we can provide that same environment inside the house. We have to give them extra activities, we have to engage them so that wo aadhe time mein, because they can't talk, like they won't tell you that they're bored, and unka ek routine tha before pandemic that they used to go out, they used to go to schools. Abhi sab kuch online hai, they can't go out play. So घर में we have to indulge them in extra activities, we have to talk to them, we have to counsel them, we have to make them understand that yeah, things are going wrong, all of us we are going through something. So that's how I think we can counsel them, we can kind of avoid what they're going through. Yeah. Sure, Dr. Pallavi, thank you so much for sharing your thoughts, and we look forward to work with you again. And yes, definitely. Thank Definitely, I'm very. माननीय अतुल सर, श्रीमान वीरेंद्र जी, डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, डॉक्टर प्रेरणा, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर सीता, हैं मेरे सभी साथियों, मैं बड़ा आज गर्व महसूस करता हूं कि एक यंग टीम जिन्होंने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया और जिस जोश से कार्य कर रहे हैं
जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और दिल से प्रशंसा करता हूं कि आपने जैसा कार्य इस कोविड पीरियड में किया मानवता के लिए, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आपकी इच्छाएं पूर्ति करे। हमारे मुख्य अतिथि श्री अतुल उत्तम सर, जो निस्वार्थ, पहले उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का पदभार संभाला अध्यक्ष के रूप में, फिर उन्होंने उपाका नाम का इंस्टीट्यूशन, जो आज भी बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके वो फाउंडर मेंबर हैं और वो अभी भी पूरे प्रोफेशन के लिए, समाज के लिए और हमारे विश्वस्त परिवार के लिए वो अपना अमूल्य समय समय पर दे करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं हमारी युवा टीम के साथ स्टार्टअप की तरफ से, विश्वस्त की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कुछ दिनों पहले हमारी टीम्स को बताया था कि हम ई सहज विलेज, जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां करीबन 70 से 80 हजार विलेजेज में उनकी उपस्थिति है। अपन विश्वस्त को उनके साथ जोड़ करके और वहां पर अपन अपनी सर्विसेज चालू कर सकते हैं। इसके लिए मैं निकुंज से कहूंगा कि वो इसके लिए एक प्रॉपर तैयार एक्शन प्लान तैयार करें अपने डॉक्टर्स के साथ में और उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें। इसी तरह आपने सुना होगा श्री वीरेंद्र कुमार जी, ये वनवासी पर रक्षा परिवार, जो अभी आपने सुना होगा 4 लाख गांवों तक जुड़ा हुआ है और डे बाय डे वो जुड़ते जा रहे हैं और इनकी बिल्कुल बिल्कुल आउटरीच है, हर गांव गांव तक ये पहुंचे हुए हैं, चाहे पहाड़ी हो, चाहे वो अपना जो है वनवास हो, चाहे वो अपना जंगल हो, सब जगह इनकी प्रेजेंस है। निकुंज जी इनसे बिल्कुल संपर्क में हैं। अपनी संस्था ने करीबन 50 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। मैं कहूंगा डॉक्टर से, अपनी टीम से, कि वो 50 गांवों को ऐसा मॉडल तैयार करें, वहां पर हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर एक व्यक्ति विश्वास के बारे में जाने और अपने को अपना प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अपनी सेवाएं, आपकी सेवाएं बोलेंगी कि जैसे अपनी डॉक्टर नेहा ने बताया कि कैसे लोग उनसे ऑटोमेटिकली जुड़ रहे हैं, कैसे उनको उनकी एक यादगार बनी हुई है। जैसे प्यासे को पानी मिलता है, वैसे ही यदि आपने समय पे उपचार दिया है तो मैं समझता हूं वो रोगी कभी भूल नहीं सकता। तो मैं वीरेंद्र जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के हमारे को अपने बारे में बताया, अपने बारे में ज्ञान दिया और अपनी संस्था के बारे में बताया। मैं समझता हूं 20 वर्ष परिवार भी उनके साथ जुड़ करके उनके कार्य को आगे बढ़ाए, समाज को स्वस्थ रखने में योगदान दे और अपनी सेवाएं प्रदान करें। इसी के साथ मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद में डॉक्टर प्रेरणा, आपने सुना होगा, कल भी सुना होगा, आज भी सुना होगा, ए वेरी डायनेमिक डॉक्टर, वेरी पॉजिटिव थॉट एंड very much connected with the hilly area, rural area. Really, I will tell God bless her, and I think she is really so inspired us. We at Biswas, we welcome her and we found a great assets for the country as well as the society. God bless her. Likewise, Dr. Neha, you heard her wonderful thoughts. Really, they are so much ahead with us, and they have so much experiences. They have already, implemented a successful model of telemedicine, because people were doubting us whether how it will be successful, how we will be able to give the medicine, how will we diagnose the problem. But no. The people have realized, even globally it has been accepted that in this period of COVID, this is the only solution, so that every person can share his problem. The problems are very different type, and every person have whether this is a stress related problem, this is related to some general problem,
So he or she can share. So I think it's very wonderful thought she has shared, and we are enlightened. She has enlightened us. Thank you very much, Dr. Neha. Really, we are very grateful to you, and hope that you will guide us time to time and be part of our team. Thank you very much. Likewise, Dr. Pallavi, really, she is continuously associated with the Dr. Biswas and serving to the society. We are really grateful to her and look forward her long-term association with the society and continuous efforts. Thank you very much, Dr. Pallavi. Thank you very much all the participants who has inspired us, who has contributed us time. They have devoted their time. So thank you very much. I think now time is over. It's 16 hours. Thank you everyone, and we are grateful to you. Thank you very much to Biswas team. They are putting their efforts and serving the society. God bless them. Thank you very much. This is a startup, but we really doing the wonderful job. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. See you now tomorrow. Nikul, now take care. Yes, sir. Thank you so much for sharing your thoughts, sir. And I would like to thank each and every one, all the speakers. Ms. Dr. Ashutosh Sharma has joined us. And because of the time consent, I will ask him to share his thoughts tomorrow, because he'll be there with us tomorrow, and definitely he will share all those thoughts and ideas that can bring change, not only to us in us, but also into the society and how we serve the society. Also, I would like to thank all the doctors, Dr. Neha, Dr. Pallavi, Dr. Prerna, and all the speakers who are there with us, our chief guest, Mr. Uttam Prakash Agrawal, and Virendraji as well. We hopefully will see you tomorrow at the same time, 3 p.m. for our third phase of webinar, and which will be the final. And also we will have a free consultation with the doctors tomorrow, which we will be guiding you tomorrow as well. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you.